सो हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, मोशन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे थे विच इज़ रोटेशनल मोशन, और वो बेसिक मोशन से बहुत ही डिफरेंट है। सो प्रीवियस अगर हम बात करें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ अ रोटेशनल मोशन एंड हु हैंडल्स दिस रोटेशनल मोशन। सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. This we have studied for the linear motion. That means force causes the linear motion. The same happens here also, but in this particular segment, we'll be discussing the motion based on torque. So that's why I explained torque in the first lecture. Then I explained this called moment of inertia in the second lecture. Okay. So in the second lecture, I explained the term moment of inertia. So I guess those who have gone through the lecture, they should be okay with the moment of inertia part. So today we'll be discussing the third element. Like I said earlier, force is equal to mass into acceleration. This we know. But in rotation, the similar parameters in place of force, we use tau. ये stylish type का T बनाते हैं, which is called torque, tau. Instead of mass, we use moment of inertia, and instead of A, we use alpha. Okay, so in the first lecture, what we studied tau. In the second lecture, we studied I. So today we'll be discussing about alpha. Okay, so let's start it then. Okay, so okay, देखें. सो हमें डिस्कस एग्जैक्टली क्या करना है, हमें अल्फा डिस्कस करना है कि अरे अल्फा है क्या चीज़. सो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी रोटेशनल मोशन को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रोटेशनल मोशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है. सो देखें रोटेशनल मोशन में. सो अभी मैं बात करूँ एक रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सो देखिए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता हूँ, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाला है. रोटेट मतलब ऐसे घूमेगा. सो लेट्स सी, आई विल से द whole object, which sort of motion is for whole object? The whole object is performing rotational motion. But if I see a particle on this object, this particle, what you will feel? This particle will complete a circle, na? Yes, sir. Yeah. Yes. So that means if I pick a particle, let's say here, what it will do? It will form a smaller circle. Sir. Yeah. So इसका मतलब ये होगा कि all the particles, they perform what? Circular motion. So इसका मतलब ये हुआ that the elements of any object performing rotation motion, all the elements perform a circular motion. Clear? So that means we need to study something about circular motion. So let's start with a circular motion. So let's see what is a circular motion. So suppose a particle is performing a circular motion. So there has to be one radius of path, and it will have a speed which is v. Now, as we studied the parameters like in linear motion, linear motion में हम क्या क्या पढ़ते थे? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक कैसे डिस्टेंस पढ़ा हुआ है हमने, टाइम पढ़ा हुआ है, फिर इनिशियल स्पीड एज u, फाइनल स्पीड एज v, एंड एक्सेलरेशन एज a. ये हमने लीनियर मोशन पढ़ी हुई है. बट सर्कुलर मोशन में क्या होगा? सर्कुलर मोशन में टर्म्स बदल जाएंगे. डिस्टेंस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? थीटा, क्योंकि वहां पे तो डिस्टेंस कवर करेगा. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? क्या कवर किया? एंगल करें. एंगल कितना कवर करेगा. देन टाइम, ऑफ कोर्स टाइम विल रिमेन टाइम इन एनी डायमेंशन. टाइम विल रिमेन टाइम इन एनी डायमेंशन, बट you will take place of the term called omega, this w. Okay, we will call also w, but confusion will come. So for the initial we use omega 0
or omega naught, I say, and there it is alpha. Alpha will relate to the acceleration. So I guess terminology is okay to everyone. Now I'll keep on explaining these in detail. टर्मिनोलॉजी ओके है सबको? Yes. हाँ, चलिए तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जैसे एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे। द टर्म विल बी नेम्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? Angular displacement. या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल रिप्रेजेंटेड एज थीटा। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता था कि हमें चाहिए कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितना डिस्टेंस कवर किया, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज बेसिकली एंगल। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंगल का फेमस यूनिट इज रेडियन। हाँ. यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन, विच मीन्स सपोज एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में है, एंड इनिशियली इट वाज at this point. Now what is the angular displacement when it reaches to this point, this? So you need to do what, you need to check what was the initial angle. So let's say initial angle is 30 degree and the final angle is 70 degree. So what is the angular displacement then? Sir, 2/9 into 2/9 pi. Yeah, exactly. So what we need to do, we need to first find in terms of angle. So it will be 70 degree minus 30 degree, it will be 40 degree. Now we need to learn how to convert it. So we already know कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, we multiply it with pi by 180 180 to convert it in radian. radian. So ये आपको याद रखना है. So if I want to answer theta correct terms, so what I'll answer, 40 into pi by 180. So 0 cancel out, 2 से cancel out होगा, so it will be 2 pi by 9 radian. Everyone okay with this? What is angular displacement? Yes. Yeah, so basically it is an angle covered, but आपको थोड़ा टेंशन होगा, तो you need to convert it in terms of radian. Okay, सोचो अभी बहुत सारे हो जाए, एंगल कई बार रिपीट हो जाए, जरूरी थोड़ा है ना कि ऐसे कई बार रिपीट हो गया, then instead of radian we consider it as a cycle, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle. कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 4 cycle. 4 cycle. yeah. So the cycle term is known as revolution. So it's another unit is also revolution. Okay, so revolution मतलब क्या, basically revolution मतलब 1 revolution मतलब कितना होगा, how much angle, 2 pi radian. yeah. So 1 revolution is nothing but 2 pi radian or 1 cycle or 360 degree. So basically we need to convert it in terms of revolution also. Okay, so angular displacement में ज़्यादा कुछ सीखने का नहीं है, मेन है angular speed. The second term is very important, angular speed, highly important I'll say. Angular speed, we represent it with the term W, which means Omega. ओमेगा. सो इसको हम नेम क्या देते हैं, ओमेगा, सिंबल का नेम है ओमेगा. सो लाइक वी डिड, क्या होता है स्पीड, स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस किस में होगा, थीटा एंगल में. क्लियर एवरीवन? सो एंगल का यूनिट कितना है, रेडियन, और इसका यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, Radian per रेडियन पर सेकेंड. तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी पड़ती है कि एंगुलर स्पीड में हमें ये सिचुएशन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई टी.
ठीक, तो ओमेगा के फेमस यूनिट्स देख लेते हैं। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, कुछ फेमस यूनिट्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया एक यूनिट होगा क्या, रेडियन पर सेकेंड। एक यूनिट हो सकता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसे पता है कैसे लिखते हैं, आरपीएस। आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या फिर ऐसा भी रहता है रिवोल्यूशन पर मिनट और रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। सो अगर आरपीएम दे दिए तो अभी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड क्या है, एसआई यूनिट है ना, दिस इज एसआई यूनिट। सो ये मेन हमें यूज करना पड़ेगा। सो हमें कन्वर्जन भी याद होना चाहिए। क्या, अगर मुझे आरपीएस को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन पर RPM. सेकेंड में। सो वन रिवोल्यूशन मतलब कितना रेडियन, 2 पाई 2 2 पाई। pi. सो 1 आरपीएस मतलब 2 पाई रेडियन पर रेडियन पर सेकेंड। एंड अगर मुझे आरपीएम को कन्वर्ट करना है, सो 1 आरपीएम मतलब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रोटेशन मतलब 2 पाई का, और पर मिनट मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो पाई बाय 30। 2 बाई 60, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो इन केस अगर आरपीएम को कन्वर्ट करना पड़े तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है एंगुलर स्पीड भी आपको समझ में आ गया सबको। सर रोटेशन इसमें कैसे आ गया? रिवोल्यूशन एंड रोटेशन बोथ आर सेम, मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स इज सेम। ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा ओमेगा बाय टी। टी। अगर ऐसा कुछ निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा नॉट। इनिशियल बाई टाइम। सो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा हमारा, इस तरीके से। अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा यार, आई गेस यूनिट एकदम क्लियर दिख रहा है। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। या सो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूजुअली इसे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में ही हम सॉल्व करते हैं। अगर रिवोल्यूशन में है तो हम फिर से कन्वर्ट कर लेंगे उसको। अब अच्छी बात ये होती है कि जैसे काइनेमेटिक्स वैलिड थी ना, यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी इनसे रिलेटेड, सेम चीज हमें यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो चले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। if alpha is constant, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंपेयर करता हूँ इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों सिनेरियो में देखें, अगर a कांस्टेंट रहता था तो याद है हम डायरेक्टली सॉल्व करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू U प्लस एट U plus 80. प्लस ए टी। फिर उसके बाद हम लिखते थे s इज इक्वल टू UT UT plus half टी 80 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हम लिखते थे v स्क्वायर V इज इक्वल square is टू, equal to U square plus 2AS. फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सिनेरियो, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम कैसे लिखते थे, टी का फॉर्मूला याद है किसी को, सर V0 लेते थे ना? हाँ v0 लेंगे तो फाइनली आता है u बाई ए को पॉजिटिव ही रखना होता है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हम टाइम निकाल रहे हैं। सो u बाई ए, तो मतलब ये हो गया u बाई जी, याद रखते थे u बाई ए। लाइक अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करूं तो वो होता था s इज इक्वल टू यू स्क्वायर U बाई square टू by ए। 2. सो अगर ये आपको याद है तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, क्या, ओमेगा विल बिकम ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीख जाएंगे हम। एस को लिखेंगे थीटा, तो थीटा विल बी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
and final will be v square, मतलब omega square will be omega naught square plus 2 into alpha into alpha into theta. Stopping time t stop, तो क्या आंसर आ E जाएगा? u equal मतलब to omega naught by omega naught by alpha. या एंड डिस्टेंस स्टॉप मतलब यहाँ पे थीटा स्टॉप ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 alpha. 2 अल्फा, और फिर यूनिट कन्वर्जन करके अपन सॉल्व कर देंगे। सर या स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a कैसे आया? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ फाइनली से 0 रख दिया फाइनल स्पीड, सो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? u स्क्वायर बाई -2a आ जाएगा ना। हाँ इस तरफ लेके जाएंगे इसको, पहले v तो 0 हो गया, स्टॉप हो गया, सो इसे इस तरफ लेके जाएंगे, s सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव मैं ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। The displacement in last second. हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, मैं अभी वहाँ उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रोटेशन में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर वेरिएबल है तो कुछ याद है क्या? इफ ए इज वेरिएबल तब क्या करते हैं? याद है, अगर वेरिएबल होती है तो कैसे चीजें फाइंड करते हैं? v कैसे निकाला करते थे? dx बाई हाँ dt. हाँ dt dx by dt से डिफरेंशिएट करके करते थे, और फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? v को डिफरेंशिएट by कर dt. देते थे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर अल्फा वेरिएबल है तो क्या करेंगे चीजें? कोई भी एक कुछ भी वेरिएबल फंक्शन दिख गया तो समझ जाओ ओमेगा कैसे निकालेंगे? डी थीटा बाई डी टी से। सर वो फर्स्ट इसमें वेलोसिटी भी वेरिएबल है. हाँ, तभी होगा ओमेगा, अल्फा वेरिएबल मतलब ओमेगा भी वेरिएबल होगा और अच्छा. अल्फा भी वेरिएबल होगा, तभी ऐसे करेंगे। तो ये दोनों चीजें थी कि हम सर्कुलर मोशन को कैसे स्टडी करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज अबाउट सॉल्विंग। अभी हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिससे आपको फील होना स्टार्ट होगा कि एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में चल क्या रहा है। अच्छा, रीजन पता चला कि सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि अगर किसी को रोटेट करोगे तो ईच पार्टिकल विल परफॉर्म अ डिफरेंट रोटेशन. circular motion. ठीक है, so that's why we need to discuss this. Now there is a relation in linear and angular parameter. I'll write first relation in v and omega. v and omega में relation क्या है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज ओमेगा से घूम रही है, किससे? ओमेगा एंगल से कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो हमें ये तो पता है कि इसकी स्पीड यहाँ पर कैसी होगी, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, यहाँ पर कैसे होगी, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, बट ये डायरेक्शन वाली चीज तो वेलोसिटी होती है ना, स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि स्पीड ऑफ एनी पॉइंट एट आर डिस्टेंस, अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू ओमेगा। तो अगर सरफेस के पूछेगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस जितनी। समझ आया सबको? सर किस पे? अगर सरफेस पे पूछा, हाँ. बीच में कहीं का पूछा तो अलग अलग रहेगी। ठीक। अच्छा, ओमेगा क्या है? ओमेगा रोटेशन पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो अगर किसी का ओमेगा सेम है मतलब क्या है, वो सेम टाइम पे चीजें कवर कर लेता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है, ये याद रखना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट completes 6 circles or circ rotations in 12 seconds, then find its omega. पता है 6 रोटेशन इन 12 सेकेंड, समझ गए ओमेगा क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई
12 into 2 12, लेकिन ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड हुआ। हमें आंसर क्या चाहिए? रेडियन पर सेकंड। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 2 पाई पाई का। तो इसका मतलब क्या होगा? 6/12 इंटू 2 पाई। ये आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन रेडियन पर सेकेंड में। सो आंसर पाई कितना आ रेडियन गया? पाई रेडियन। पाई रेडियन पर सेकंड। सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ अभी इन द सिमिलर वे मैं पूछूं, देन फाइंड इट्स ओमेगा एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज होता है? टाइम पीरियड क्या होता टाइम है? फॉर वन रोटेशन ना। या एग्जैक्टली। सो टाइम पीरियड इज डिफाइंड बाय टाइम फॉर 1 root वन रोटेशन। बताओ यूनिटरी मेथड। 2 seconds एग्जैक्टली। सो बिकॉज 6 रोटेशंस को कितना टाइम दे रहा है? 12 सेकेंड। सो वन रोटेशन को कितना टाइम देगा? 12/6 मतलब 2 second. So the similar we can solve also through the omega also. If omega is in radian per second, you can write the time period as 2 pi by omega also. So now you can solve that t will be 2 pi upon omega कितना है? Pi. What will be the answer? 2 seconds 2 second. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि टाइम पीरियड और ओमेगा कैसे रिलेटेड है। तो कैसे 2 पाई बाय ओमेगा से। तो यहाँ तक पहले ये बताया, काइनेमेटिक समझ में आया रोटेशन का। हाँ सर। अब हम क्या एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा सीखेंगे, फील करेंगे कि सर्कुलर मोशन कैसा है। मैं एग्जांपल करता जाता हूँ, आप लोग ट्राई करें, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ। ओके यस हाँ, ओके लेट्स सी देन। देखिए बहुत ही सिंपल वे पे बता सकते हैं। दो डेफिनेशंस बताई ना यार ओमेगा निकालने की। एक क्या यूनिटरी मेथड से और एक टाइम पीरियड से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज 200 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। इसका मतलब 1 रिवोल्यूशन में कितना लगेगा? 1/200। बट यार ये 1/200 क्या है? यूनिट क्या है? इट इज रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम दिया है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इन रेडियन पर सेकेंड। ओके सो यू कैन आंसर कि ओमेगा कितना है? सर वो 1/200। 200 RPM है ना?
हाँ सॉरी, ये 200 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट है, मतलब 200 आरपीएम है। अभी यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि ओमेगा गिवन क्या है, 200 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है। तो इसे आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। सो यूनिटरी मेथड मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, 1 मिनट बाई 200। तो मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकेंड में, और रेवोल्यूशन को 200 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा उसे पता चल गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना ओमेगा। क्या कि एक रेवोल्यूशन में उसे कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, एंगल में देखना होता है। तो इंस्टेड ऑफ 1 रेवोल्यूशन हमें ये किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर कितना है, 1 बाई, हाँ 3 से डिवाइड हुआ, 3/10। ओमेगा कितना आ गया, 3/10। बट ये आंसर किस में है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। सर इसमें अभी भी सेकंड ऊपर है न्यूमरेटर। ओके ओके, एक मिनट, माय मिस्टेक। अभी सिचुएशन क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। सो ये गड़बड़ कर दिया हमने, हमें उल्टा लिखना चाहिए। यूनिटरी मेथड में क्या लिखना चाहिए हमें, 1 मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं, 200 रेवोल्यूशन। सो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे, 200 200 डिवाइडेड बाई 60 रेवोल्यूशन। सो ये हो गया हमारा ओमेगा। ठीक, बट प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में है। अगर हमें उसे रेडियन पर सेकंड में चाहिए तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो अभी हमारा कितना है ये, 10/3। ये आंसर क्या है, आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड। हम 2 पाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो कितना हो जाएगा, 20 पाई/3। बाय ये 3 क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। आरपीएम दिया है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्या समझाया, डायरेक्टली करना है तो 2 पाई/60 डायरेक्टली लिख लो, तो डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक था कि आपको अगर डेटा ऐसे दिए तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ ऑल क्लॉक हैंड्स। ओके, दैट मीन्स आपको एंगुलर स्पीड चाहिए बाकी सारे क्लॉक हैंड्स की। तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं, पहले हमें सेकेंड हैंड का चाहिए। सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड कितना होता है, फिर मिनट हैंड का चाहिए, और फिर हमें आर हैंड का चाहिए। तो आप लोग सॉल्व करके रखें, देन आई विल आस्क और आई विल सॉल्व। ओके, चलो एक अच्छा याद दिला देता हूँ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, सेकेंड हैंड कितनी देर में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, 60 सेकंड्स। 60 सेकेंड्स 1 रेवोल्यूशन। सो हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, मतलब चाहिए कि 1 सेकंड एक, हाँ, रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करने वाला है। सो इन 1 सेकंड कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा, 1/60। 1/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सो इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। सो इसका मतलब ओमेगा समझ गए क्या आ जाएगा, 2 पाई का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका मतलब आंसर आएगा पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो लाइकवाइज मिनट हैंड का ट्राई करें और आवर हैंड का ट्राई करें आप लोग, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ट्राई इट।
ओके, सो आई गेस सबको समझ में आ गया कि इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। याद है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय T. टी, बिकॉज टी इज इक्वल टू क्या था 2 पाई बाय ओमेगा। सो ओमेगा को इस तरफ ले गए, टी को डिवाइड में ले आए, सो ओमेगा हम डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। सो यहाँ पर मैं इस बार डायरेक्टली निकालूंगा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब बताओ मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 मिनट्स में 60 वो मिनट्स में पूरा कंप्लीट मतलब करता है। यस, 36006। सो 60 मिनट हो गया, बट हमें इसे सेकंड में लिखना है। सो आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3600 सेकेंड। सो आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड। सेम चीज आर एन का कर सकते हैं। आर एन का टाइम पीरियड कितना है? 12 घंटे 12 आवर्स 12 आवर्स है ना, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 12 इंटू 60 इंटू 60। सो ये फाइनल हो जाएगा हमारा इसका। सो एक इस आइडिया लग गया आपको, मल्टीप्लाई करने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस पर्पज़ ये था आपको ये बताना कि आप कैसा एंगुलर स्पीड को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक पार्ट, एंगुलर स्पीड को रिलेट करना। अब हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं, मतलब कुछ टाइम वगैरह लगा के क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। फिर स्टॉपेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, देख लेते हैं, लिख के रख लेना है आपको यार। U by ओके, समझा यार सबको स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? नाइन्थ में सीखा था ये सारी चीजें हमने, ठीक है। मोशन का पूरा पार्ट हमने नाइन्थ में देखा हुआ है। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं, सॉल्व करें अभी। व्हाट शुड बी द फोरमोस्ट काम? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? ओमेगा कितना है अभी? ओमेगा कितना है? 600 600 आरपीएम। क्या मैं इसे क्वेश्चन में यूज करूंगा क्या? 9 नहीं, इसे किस में कन्वर्ट करना चाहिए हमें? रेडियन पर RPS हाँ, रेडियन पर सेकंड में, नॉट आरपीएस। आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 2 pi pi by 60 2 पाई बाय 60। सो इसका मतलब कितना हो गया ये? 20 20 पाई हो गया क्या?
रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? सो नाउ यू नो, अभी फास्ट सॉल्व कर देंगे, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करें जल्दी से, जस्ट 1 मिनट, इन 1 मिनट। सर 5 पाई। ठीक है, देख लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम कितना होगा फॉर्मूला? ओमेगा बाई ओमेगा बाय अल्फा, मतलब 20 पाई डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आ गया? 10 10 पाई सेकेंड्स। अब स्टूडेंट को लगता है सर गलत आ गया क्या, कुछ अजीब सा आ रहा है? नहीं, अजीब सा नहीं है, यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, सो 3.14 यूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इट विल टेक 31.4 seconds nearly to stop. Okay, yes yeah. Then stopping distance theta, the formula is omega square by 12 ओमेगा स्क्वायर बाय 12। हाँ, so which means 2 pi into 2 pi, sorry 20 pi upon 2 into 2 2 into 2। so आंसर कितना आ जाएगा? 100 pi pi square। अभी पता होना चाहिए कि नियरली पाई स्क्वायर करते हैं, सो इट कम्स नियरली 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 10 आती है, सो द आंसर विल बी 1000 रेड 1000 रेडियन। सर यानी उसे पाई की वैल्यू पुट करके ही आंसर पुट करके ही बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब जरूरत नहीं है, विदाउट पाई रख के ही आंसर क्लियर है। आंसर क्या आएगा? इतना रेडियन। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है लेकिन हमसे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन Number of कितना revolution. करेगा, ऑफ एच। ठीक है। सो मुझे पता है कि रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा। रेवोल्यूशन मतलब अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो टोटल आ जाएगा 50 पाई रेवोल्यूशंस। pi हाँ, 50 पाई रेवोल्यूशंस। सो इसका मतलब क्या होगा? फिर से सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख दो, सो दैट मीन्स देयर विल नॉट बी टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशंस। क्लियर? समझ आया? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर कई बार ऑप्शंस 50 पाई भी रहेगा सर आपको। कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा ना सर ये आपने डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से ही किया ना? हाँ, कौन सा पार्ट यूनिटरी? हाँ, ये डायरेक्टली यूनिटरी मेथड, ये वाला लॉजिक कि वी हाँ, नो बिकॉज वन वन रेवोल्यूशन इज रेवोल्यूशन इज 2 पाई। 2 पाई रेडियन, और इसको उल्टा लिख देते हैं, 2 पाई रेडियन मीन्स 1 वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। So that means 1 radian will be 1 by 2 pi revolution। ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये आइडिया यहाँ तक समझ आया, काइनेमेटिक्स कैसे यूज करते हैं। हाँ ओके, चलिए एक और एग्जांपल दे लेते हैं। तो यार यहाँ पर कैसे करना चाहिए, ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ? थीटा बाई टी। d theta by एग्जैक्टली, डी थीटा बाई टी करेंगे। ऐसे नहीं लिख देंगे कि इसी में टी का डिवाइड कर दिया। सोचो, मैं इरेज कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2t² माइनस 4t डिवाइड बाई टी।
सो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 2t माइनस 4। ये क्या है? गलत है। गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। अगर फंक्शन दिए तो क्या करते हैं ओमेगा, फिर फंक्शन से सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, थीटा रेडियन में दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। सो क्या आ जाएगा सॉल्विंग, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t माइनस 4 विल रिमेन एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन 1। सो इसका मतलब कितना आ जाएगा 4t माइनस 4, दिस विल बी और ओमेगा एंड द यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो एट हमें कब चाहिए, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। 5 सेकेंड। सो इसका मतलब ओमेगा में रख देंगे यार वैल्यू, 4 इंटू 5 माइनस 4, कितना आ जाएगा 16 रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे लग रहा है ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हमें डील करना है। आप समझेंगे कि रोटेशन में क्यों इन सब चीज़ों का काम था, क्योंकि मैंने बताया कि रोटेशन मतलब एक टाइप की सर्कुलर मोशन ही हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि रोटेशन पे हम वापस आ जाते हैं। तो अभी तक ये जो एग्जांपल था ये सर्कुलर मोशन का था। अब रोटेशन का बहुत ही फेमस फार्मूला कि रोटेशनल मोशन में अगर मैं किसी पे टॉर्क लगा रहा हूँ तो वो टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा जितना। तो इसका मतलब मुझे पता है कि अल्फा कितना है, तो मैं बता सकता हूँ कि कितना टॉर्क लगाएगा। ओके, तो यहाँ से रिलेट करना सर है आपको, या फॉर एनी गिवन केस हम दोनों फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ नहीं, दोनों से सॉल्व करना है, बट सोचो डेटा ही नहीं गिवन रिलेटेड टू बाकी सारी चीज़ें। टॉर्क कब निकालते हैं, जब हमें फोर्स दिया और लेंथ दिया हो। सोचो हाँ। आपकी फोर्स की वैल्यू ही नहीं दी तो टॉर्क निकाल पाओगे क्या फोर्स लेंथ से? नहीं। नहीं इस फॉर्मूले में आए और अल्फा अगर पता होगा तो टॉर्क निकाल लोगे ना। नहीं, बट सर फिर अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते कोई हैं भी ना वहाँ पर। फार्मूला, दोनों करेक्ट है, अगर डेटा है तो कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल से देखे तुरंत फील आ जाएगा आपको। देखिए एग्जांपल से फील आएगा। ओके, तो पहले बताओ क्या टॉर्क आप फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकाल सकते हो क्या? तो टॉर्क कहाँ से निकालेंगे? आई अल्फा से। आई पता है कि नहीं क्वेश्चन में? हाँ सर। गिवन है। तो इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, क्या फाइंड करके लेके आना? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। चले सॉल्व करें जल्दी से।
ओके, किसी का आंसर आ गया? सर 1.2 पाई। ओके, देखें, हमें सर सबसे इसमें पहले यूनिट क्या आएगी? टॉर्क की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वही आएगी ना, सारा न्यूटन रेडियस मीटर। यूनिट है ना, न्यूटन मीटर। मीटर इंटू मीटर। सर लेकिन इसमें रेडियन वगैरह आ गया। हाँ, तभी ना, रेडियन से ही तो मैं बोल रहा हूँ कि रेडियन एसआई यूनिट है, तो इसलिए रेडियन जब यूज करेंगे तो आंसर क्या आता है? अच्छा, ओके ओके, तो आप ये कंफ्यूज हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों यूनिट आने वाला है। हाँ। हाँ, सो बेसिकली रेडियन का कोई खुद का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन होता एंगल तो का वो सब कोई खाली होती यूनिट है। नहीं है। सो बेसिकली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ये, और ये क्या है? ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब केजी इंटू जी मीटर में। मीटर स्क्वायर। सो देखो, एक मीटर अलग कर लेते हैं, सो केजी इंटू मीटर और अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है? मास इंटू एक्सेलरेशन का, फोर्स का इंटू डिस्टेंस, मतलब हाँ न्यूटन इंटू मीटर। समझ गया। हाँ, चलो तो वैल्यूज कर लेते हैं यार। हमें पता है कि स्पीड 0 टू 300 आरपीएम है, तो पहले ओमेगा कन्वर्ट कर लेते हैं। 300 आरपीएम है, किस में लाएंगे इसे? रेडियन पर रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि 2 पाई/60। सो कितना आ जाएगा? 10 पाई। अच्छा, अब निकाल लेते हैं क्या अल्फा। सो अल्फा क्या आएगा? 10 पाई रेडियन पर सेकंड बाय या 5। डेल्टा ओमेगा बाई टी, जितना चेंज हुआ ये, इसका मतलब कितना? 300 फाइनल है, सॉरी 300 नहीं, 10 पाई क्या है? 10 पाई फाइनल माइनस माइनस 1 इनिशियल कितना था? माइनस 0 0 बाय अपॉन टाइम टेकन 5, तो कितना आ गया? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। सेकेंड स्क्वायर। सो आई गेस आंसर आ गया आपको, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो आई इज 0.6 इंटू अल्फा इज 2 पाई। आंसर कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू पाई। पाई को कन्वर्ट कर ले 1 4। 3.14 में, तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 8। ओके, सो दिस मच न्यूटन मीटर, और डायरेक्टली मैं लिख सकता था जस्ट 1.2 पाई। समझ आया कैसे निकाल सकते हैं फिर टॉर्क? हाँ सर। पक्का, तो लेक्चर 1 और 2 आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस पे ही और मैं एग्जांपल थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, देखें। किसी को अगर समझ नहीं आया तो बता दो यार, कोई भी पार्ट टिल दिस पॉइंट अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो बताओ। ऐसा बने। ओके गुड, चले तो और एग्जांपल कर लेते हैं।
ओके, तो ये क्वेश्चन में इस बार हमें क्या पता है, टाउ पता है, आई हमें ढूंढना पड़ेगा और फाइनली क्या फाइंड करना है, अल्फा। अल्फा पता चल गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, फिर फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के। हाँ मतलब फाइनल स्पीड ओमेगा विल बी इनिशियली लेट से रेस्ट पे था प्लस अल्फा इंटू टी। सो लाइकवाइज सॉल्व कर दें, चले सॉल्व करें, जस्ट 2 मिनट का क्वेश्चन है, फास्ट सॉल्व करें। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही आएगा ना? हाँ, डिस्क का याद रखना पड़ेगा ना हमें। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे सेल्फ रोटेट होती है तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। सो डिस्क अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो उसका आंसर सही है, क्या रहता है, mr²/2। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2। सर वो रेस्ट पे है ना। हाँ, इनिशियली रेस्ट पे आप कंसिडर करना पड़ेगा उसे, तभी निकालेंगे। ओके, चले देख लेते हैं यार। तो आय निकाल लेंगे, आय कितना आ जाएगा हमारा, एम कितना है 10। 10/30। हाँ, आर 0.25 है, उसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/4 टाइप। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, 5/16। ये क्या आ गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने 0.25 को क्या लिख दिया, 1/4 टाइप पे लिख दिया, जिसे सॉल्व करना बाद में इजी रहेगा। अभी हमें पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो टाउ कितना है 20 है, बट आई कितना है 5/16 5/16 इंटू अल्फा है। सो नाउ आई नो कि ये 5 से कट हो जाएगा, कितना आएगा
4 टाइम्स और 60 उस तरफ मल्टीप्लाई हो 64 जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 64 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। अभी हमें पता है कि 10 सेकंड में कितना अचीव कर लेगा। हमें पता है क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो अल्फा। इनिशियल है वो तो 0 ही है, उससे मतलब नहीं। अल्फा कितना है? 64 इंटू कितने टाइम में? 10 सेकंड में। सो कितनी स्पीड अचीव कर लेगा? 640 रेडियन पर सेकंड में। अभी क्या हो सकता है कि मे बी रेडियन पर सेकंड ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा भी निकालना पड़ेगा। सो 640 इंटू क्या करा दे, अगर हम 2 पाई करा दे तो ये क्या बन जाएगा? आरपीएस। आरपीएस। एक सेकेंड, सॉरी, इतना रेडियन पर सेकंड है ना, हमें क्या चाहिए? रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 पाई का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा क्या? रिवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा हाँ। तो ये थोड़ा सा ऐसा साइड में रखना है। क्या माइंड में रखा करना है कि यार 1 रिवोल्यूशन मतलब होता है क्या? 2 2 पाई पाई। रेडियन। इसका मतलब 1 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा 1/2 पाई रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें रेडियन को कन्वर्ट करना था रेवोल्यूशन में, इसलिए हमने 1/2 पाई किया। ठीक है, और उसी को आगे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो वो जस्ट है कि अगर एग्जाम में या वैसा कुछ आरपीएस दिया है तो हम आरपीएस के फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया सबको? यस। चले, तो मुझे लगता है कि अल्फा और टॉर्क का सबको समझ में आ गया। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? नहीं सर। ओके, सो अभी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन। व्हाई आई एम राइटिंग दिस प्योर रोटेशन? इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो कि आगे मूव कर रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। प्योर और फिक्स्ड रोटेशन। बट अगर एक व्हील ले लो, तो व्हील की क्या खास बात है कि व्हील आगे भी जा रहा है किसी v स्पीड से, और साथ में क्या कर रहा है? ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब दो चीजें हो रही हैं, क्या? रोटेशन प्लस लीनियर मोशन। समझ आया क्या? हम्म। सो व्हील में दोनों हो रहा है, जबकि एक फिक्स ऑब्जेक्ट में प्योर रोटेशन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? सो आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाँ। रोटेशन में एम की जगह क्या आ जाता है? आई, और वी की जगह ओमेगा। ओमेगा। सो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा। आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है तो फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ हाफ एम वी। एम वी स्क्वायर। एमवी एंड स्क्वायर। रिलेशन क्या होता है वी और ओमेगा में? क्योंकि देगा तो आपको एक ही क्वांटिटी ना, दोनों नहीं देगा कि वी भी ओमेगा भी दे दिया। V is equal to R ओमेगा। या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर वी देगा तो उससे ओमेगा निकाल के ये वाला यूज कर लेंगे, और अगर ओमेगा देगा तो उससे वी निकाल के इसको भी यूज कर लेंगे। समझ आया काइनेटिक एनर्जी सबको? हाँ। अच्छा, तो वो याद है एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह या ऐसा कुछ? देख लेते हैं, एग्जांपल लिख देता हूँ। A stone tied to 50 centimeter thread and being rotated with 360 rpm, then find its kinetic energy.
वो जो स्टोन है उसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन क्या है कि एक थिन थ्रेड से, थ्रेड का कुछ भी नहीं हमें डिटेल दिया है, क्या एक स्टोन ऐसे फिक्स किया है और उस स्टोन को क्या कर रहे हैं हम, ऐसे घुमा रहे हैं। किस स्पीड से? ओमेगा से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? क्या ये आगे भी जा रहा है क्या कहीं ऐसे? नहीं, नहीं, तो सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ आई ओमेगा। आई ओमेगा स्क्वायर। तो यार फाइंड करना पड़ेगा आई। बताओ आई कैसे लिखेंगे पार्टिकल सर का? हॉलो स्फीयर के फॉर्म में ये होगा ना? नहीं नहीं, स्फीयर वगैरह नहीं बनेगा। आई अलग अलग लिखते हैं, पार्टिकल का अलग लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का अलग लिखते हैं। यहाँ पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है? नहीं, पार्टिकल है एक। तो कैसे लिखते हैं पार्टिकल्स का? मास इनटू आर स्क्वायर। यस, जस्ट एम इंटू आर स्क्वायर। कितना दूर है वो, ठीक है। तो एम कितना है इसका? 100 ग्राम, मतलब 0.1। और कितनी दूर है ये सेंटर से? 0.5 मीटर। 0.5 का स्क्वायर। डन। तो आंसर कितना आ जाएगा अगर मैं देखूं? 0.5 मतलब 1/2। हाँ, 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 4। 1/4। और 1/4 को सॉल्व करें सो 40/1। डन। तो आंसर क्या आ जाएगा आई का? 1/40। या फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसे फ्रैक्शन में बनाने का ट्राई किया है, हम उसे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं। आए समझ आया सबको? हाँ हाँ, तो अभी काइनेटिक एनर्जी इजिली निकाल सकते हो। हाँ। ओके, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओमेगा कितना है? 3 360 आरपीएम। तो इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 360 इंटू 2 पाई बाय क्लियर। सो ओमेगा कितना हो जाएगा? 20। 12 पाई। हाँ 12। तो यहाँ पर रख देंगे वो वैल्यू भी, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल में। किसी को कोई डाउट क्या इसमें? नाइस। ओके, सो अभी सॉल्व कर देंगे। 12 इंटू 12 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40। सो कट कर लेते हैं। सो 2 6 4 3 10, one more time 2, so it will be 9/5. 6/5। Okay, नहीं, सर 3 2 सर। हाँ, देख लेते एक मिनट। 12 2 6 टाइम 6, देन 4 से सर डिवाइड फिर किया। 4 3 4 10 और फिर 2 से फिर से 6 और 10 को डिवाइड किया। हाँ, सो ये 3 आया और ये 5 आया, अच्छा हाँ। मल्टीप्लाई में है ना वो। सो 9 पाई स्क्वायर बाई 5, दिस मच जूल्स। ये हो जाएगी एनर्जी निकालना। तो बताया यार, एनर्जी निकालना भी समझ आ गया यार सबको? हाँ सर। यस। हाँ, अगर हमें व्हील वगैरह कुछ ऐसा मूव कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं पूरा। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
ओके, सो व्हील को अभी भी आपको क्या कंसिडर करना है एज अ डिस्क। अच्छा, व्हील हटा देते हैं, बॉल लिख देते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीरिकल बॉल। बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया हमने, सर हालो है सॉलिड बॉल। 2/5 m into r या वेरी गुड। सो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इस बार एक गलती हो सकती है कि रोलिंग है, मतलब समझ गए ना, क्या करना पड़ेगा? हाफ mv स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, प्लस हमें हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में वी गिवन है, वी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ओमेगा क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ आया सबको? हाँ सो वी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है, और आर कितना है? 0.4। ओके। हाँ सो ओमेगा कितना आ गया? 50 रेडियन पर रेडियन पर सेकेंड। अभी सॉल्व कर सकते हैं गेस। चले फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, फास्ट सॉल्व करें। ओके, आई गेस सॉल्व कर लिया होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ इनटू आई। हमें कैसे कंसिडर करना है? सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल का आई कितना होता है? 2/5 आर एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, सो वैल्यूज रख देते हैं बाकी सबकी और सॉल्व कर देंगे जस्ट। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ इनटू 2/5 इंटू एम कितना है? बॉल 20 kg इंटू आर कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 मतलब 0.4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है? 50। सो 50 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर तो करेंगे ही, तो हाफ इंटू एम इंटू 20 और वी कितना है? 20 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर देना है, अपन को हो जाएगा। तो यार काइनेटिक एनर्जी का समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, तो काफ़ी है, ये काफ़ी है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है? हमने टाउ देख लिया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया, हमने अल्फा देख लिया, हमने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा देख लिया, और हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली। यहाँ तक रोटेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ओके गुड। सो जिन लोगों ने को थोड़ा डाउट आ रहा है वैसा कुछ, वो एक बार अच्छे से देख लो। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़्यादा इन पे ही और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये अभी देखने में इजी लग रहा है बट इन पे बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, आय निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वो करके फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आपको याद है, 9th में हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी फिर बैक टू पोटेंशियल। एग्जैक्टली। सपोज एक रॉड है, मैंने उसको ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ पर स्क्रू के थ्रू फिक्स है, बट ऐसा लूज है, अगर इसे छोड़ दिया, ड्रॉप किया, सो अभी ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। सो जब ये नीचे पहुंचेगी इट विल गेन सम एंगुलर स्पीड ना, हाँ ओमेगा। सो कैसे निकालेंगे एंगुलर स्पीड?
सो अभी ये ऊपर थी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ थी? यहाँ पे। अभी नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी? यहाँ पे ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किससे देखते हैं? हाँ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ गई? L L by by 2, 2। मतलब mg L by 2 will give हाफ आई half of, हाँ ओमेगा स्क्वायर। किसी को याद है रॉड का आई कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? mr square by 3, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एज के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3, और सेंटर के अबाउट क्या होता है? MR square by 2. हाँ ओके, हाँ mr square by 2, ml स्क्वायर बाई 12। सही है, वेरी गुड। तो ठीक है, अभी आज रोटेशन को यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा रिलेटेड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहना है, प्रैक्टिस करके आना है, जिससे आप और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे वहाँ पर। ओके Yes. ओके, चले ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो स्पेसिफिक अभी तक के लेक्चर्स में तो बताएं। Nice. फर्स्ट 3 लेक्चर में कोई डाउट नहीं ना? No. ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. या बाय बाय। by sir.